Now we'll start little bit. आपको before I go to the wind triangle, what is Beaufort scale? How do we estimate the true direction, true speed of the wind even by looking at the sea surface? अब एक तो हमारे पास instruments हैं. Can anybody tell me which is the instrument जिससे हमें wind speed का पता लगता है? Anemometer. Very good. So anemometer हमें, चलो यहाँ तक हमने किया था, वेयरिंग बैकिंग हमने कर लिया था. And distribution, wind distribution, I'll take it separately. What is the global wind distribution or pressure system? तो थोड़ा मैं separately लूँगा. By Ballard's law. So this is also very simple to remember. Nothing much. सिर्फ इसमें आता है what is by Ballard's law and what are the precautions while applying this by Ballard's law. So by Ballard formulated a law identifying the relationship between the wind and the pressure distribution. Pressure distribution हमने देख ली थोड़ी सी, low pressure, high pressure. So उस चीज का relation को उसने एक identify करते he formulated what today is known as the by Ballard's law. So it is simple. He says if you face the true wind, please remember true wind. What you experience on the ship when the ship is moving is the apparent wind, which is a resultant of basically the true wind and the ship's own movement. So उसका जो resultant है that you get the apparent wind जो आपको anemometer से भी मिलती है. So true wind is you can see by looking at the sea surface. So if you face the true wind, and the low pressure area will be on your right side in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. So ये तो simple law है. अब इसकी थोड़ी सी restrictions हैं. This law cannot be applied near equator. So you got to be a little careful. Why? Because the Coriolis force here is negligible and winds blow directly from high pressure to low pressure across the isobars. And second, इसकी जो caution है, the law should not be applied in the vicinity of land. क्यों? कि land में जो wind है, it is not the free wind. It basically comes after diversion, lot of obstruction is there. So it is not an unobstructed wind. जिसके करके now the scientist who discovered the by Ballard, he says this law should be applied with caution when you are close to the coast where you may not have the unobstructed true wind blowing towards you. अब आपका आ गया Beaufort scale. I think all of you must have heard, and I don't know how many of you try to see at sea by looking at the sea surface. That आपके पास books हैं आजकल on the ship. Even you can see, I'll show you. Beaufort scale is a very good example that it was of course produced by Admiral Beaufort in 1808, who was a hydrographer of Navy. And this scale, the Beaufort scale, it provides a practical means of estimating the force of wind by the appearance of the sea. Now, आपने कहा जैसे anemometer, of course, anemometers से पहले, before this anemometer was devised, so we used to feel the wind, we used to see, we used to look at the sea surface, and you can estimate, you can make out, of course, which direction the wind is coming. That is not difficult by looking at the what you call white horses. You can feel, you can see the waves, and you can make out which direction it is coming. But it is difficult to estimate by feeling the wind at what force, what speed it is coming. So उसके लिए this scale was devised, that what wind force presently is going on. Like if you look at it here, if you see, if the sea surface is absolutely calm, जिसे हम rippled sea कहते हैं, so there is no wind at all, and then the sea looks like this, that means wind force is zero. Absolutely calm condition, wind speed भी इसकी zero. There is no wind means there is no wind speed. तो अगर आपको sea surface ऐसा दिखता है, to estimate the wind, to write in the logbook, we can write wind force 0, isn't it? And अब थोड़ी थोड़ी wind जब चलनी शुरू होगी, suppose there is a slight wind, then you see the sea surface starts getting little bit disturbed. Very small wavelets, ripples start forming on the sea surface. Now ये जो है appearance, now if you look at this, now they have estimated with their instruments that with this type of sea surface, what will be the wind speed? It is about 1 to 3 knots.
So very good. So initially you may take time, you may have to compare, you may take the book, see, open and compare which the sea surface is resembling, and आप logbook entry बना सकते हो. After some time आपको by look at it only you will be able to come to know what wind force is there. Now if the wind increases, अब देखिए wind जो है थोड़ी सी increase हो गई, how the sea surface looks as compared to absolutely glassy rippled sea की बजाय अब आपको see थोड़ा सा small wavelets, you can see this on the sea surface. Now if you see the sea surface like this, still the small wavelets still short but more pronounced and थोड़ी waves आ रही हैं. अगर आपको sea surface ऐसा दिखता है that means it is force 2. अब logbook में भी entry बनानी force 2, and you can estimate that when it is force 2 the wind speed can vary between 4 to 6 knots. So average wind speed is 5 knots. So how beautiful system he devised. Of course they measured in this sea state, in this sea surface with the instrument what will be the wind speed, which is approximately say 5 knots. अब थोड़ी और wind speed increase होगी. Now you see the sea surface, you can see the large waves, small waves start forming. So by looking at this अब हमें लगता है कि now this is the wind force 3, जिसे हम gentle breeze कहते हैं. इसमें wind speed 7 to 10 knots, average about 9 knots. So ये सारी डिटेल भी आपके जो वेदर लॉग्स हैं, वेदर एटलसिस, इवन योर मैरिनर्स हैंडबुक, उसमें भी दिया होगा कि these photographs के साथ it is very easy for me to compare. Even I open the book and see the sea surface. Initially I told you there is no harm. That अगर आप बुक को ओपन करके देख के कंपेयर करके लिखते हो, nobody will say anything. But slowly you gain experience. अब आपको मेरे को यस यार कौन सी फोर्स है, फोर्स 2 है, 3 है. नाउ दिस इज लुकिंग एज फोर्स 3. एंड अगर आपको कुछ करना है सो यू नो एवरेज विंड स्पीड आपकी, दिस द ट्रू विंड स्पीड, नॉट व्हाट यू गेट ऑन द एनीमोमीटर. ओके, सो दिस विल बी द ट्रू विंड स्पीड विच इज अबाउट 9 knots. नाउ you look at the sea surface, it is more disturbed. White horses, now these are known as the small white horses. अब इनकी डायरेक्शन से, दिस डायरेक्शन से ये आ रहे हैं. आई थिंक वी कैन वेरी इजीली मेक आउट डे टाइम में. यस और नो, कभी ऑब्जर्व किया इनको? यस सर. या, तो ये जो है दीज आर कॉल्ड व्हाइट हॉर्सेस. इफ यू स्टैंड ऑन द ब्रिज विंग एंड आप इनको ऑब्जर्व करोगे, जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं, हमारे पास कंपास रिपीटर है, आप वहां से इसको उसकी डायरेक्शन देख सकते हो. इट इज कमिंग फ्रॉम 2 points 4 points, which direction from the compass point. Here wind is, this is the true wind, this is the one way of estimating the direction of true wind at sea. And speed, अब मेरे को सरफेस से, यार ये सरफेस जो है थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज फोर्स 4. व्हाइट हॉर्सेस दिख रहे हैं, स्मॉल वेव्स, फ्रीक्वेंट व्हाइट हॉर्सेस मेरे को दिखने शुरू है, दैट मीन्स इट इज विंड फोर्स 4. मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव दिस विंड फोर्स 4. अब इसकी जो विंड स्पीड होगी 11 to 16 knots, 13 knots एवरेज. अब और विंड स्पीड इंक्रीज हुई तो और सी सरफेस डिस्टर्ब होएगा. अब ये व्हाइट हॉर्सेस जो हैं थोड़े से और प्रोनाउंस्ड हो गए, एंड अब इस पे आपको विंड फोर्स 5 हुई तो सम स्प्रे आना शुरू हो जाएगा. तो जैसे ये विंड सी सरफेस आपका डिस्टर्ब होता है, सो यू कैन टेल योर पीपल वर्किंग ऑन द डेक कि डियर सी इज गेटिंग लिटिल चॉपी, विंड इज इंक्रीजिंग. सो प्लीज मेक श्योर आप अपनी जिधर भी डी-रस्टिंग पेंटिंग कुछ कर रहे हो, there are chances of some spray coming. And wind speed, now it is gone to about 20 knots, 19 knots average, 17 to 20 knots. So if somebody talks what is the wind force, because force 5, तो आपके मन में immediately आ जाएगा force 5 means about 20 knots wind the ship is facing. Now the next force 6. Force 6 में large waves begin to form, white foam crust more extensive, and of course अब डेफिनेटली स्प्रे आपके शिप पे आएगा as the waves hit your bow. अब आप देख रहे हो कि वेव्स का जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो गया. आप यू कैन डेफिनेटली मेक आउट ऑल्सो कि ये सी जो वेव्स हैं किस तरफ से आ रही हैं, व्हाइट हॉर्सेस किस तरफ से आ रहे हैं, डायरेक्शन एंड स्पीड. अगर फोर्स 6 है, सी सरफेस ऐसा दिख रहा है, अबाउट 24 knots, 22 to 27 knots एवरेज विंड स्पीड. फोर्स 7, सी हीप्स अप, व्हाइट फॉर्म फ्रॉम ब्रेकिंग. अब आपका स्प्रे तो आएगा ही आएगा,
वेव्स जो हैं थोड़ी और बड़ी होगी, डेप्थ भी उनकी ज़्यादा होगी. And she is going to hit. Now you can see this is the bow wave which the ships form when ship is moving. तो इसके साथ आपको वेव्स की जो डायरेक्शन है, वेव्स की जो लेंथ है, हाइट है, वो ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाएगी. दिस इज 30 नॉट्स विंड. फोर्स 8 व्हाट वी कॉल गेल फोर्स. अब गेल फोर्स में आपका सी सरफेस जो है थोड़ा वाइट दिखना शुरू हो जाता है. इट इज़ ड्यू टू दैट द फोम, द स्प्रे जो है वो विंड के साथ सी सरफेस पे भी इट स्टार्ट्स ब्लोइंग थ्रू. इट स्टार्ट्स ब्लोइंग इन द वेरी वेल मार्क डायरेक्शन में. वो स्प्रे सी सरफेस पे भी ब्लो होना शुरू होता है, तो आपको सी सरफेस थोड़ा वाइट वाइट नज़र आना शुरू हो जाएगा. Now the wind speed has gone to 37 knots, say about 34 to 40 knots. So it can be 40 knots, it can be 34 knots. Average they have taken about 37 knots. So when you are writing in the logbook, now you got to be careful. अब आपकी ये नहीं कि वेदर एंट्री तो आपने लिख दी कि जी विंड फोर्स 8, शिप एक्सपीरियंसिंग गेल फोर्स, एंड उसके साथ आपका डेक में काम भी चल रहा है, वेंटिलेशन भी हो रही है, तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा. तो डेफिनेटली यहाँ पे heavy spray will come, ship will ship a heavy spray. So forward and especially forward में you got to warn the people not to go forward and close all your. Now as a duty officer, अब ये आपने ये नहीं सोचना कि आप थर्ड ऑफिसर हो, ब्रिज पे खड़े हो, सर मैं क्यों किसी को बोलूं या मैं कैसे बोलूं. आपके पास लाउड हेलर सिस्टम है, जो भी है, वॉकी टॉकी जो भी सिस्टम है आपका, यू टू टॉक टू बोसन. बोसन अभी सी इज बैड, सो प्लीज आगे के जितने भी आपके वाटर टाइट डोर हैं, स्टोर्स के जो डोर्स हैं, दिस इज अ गुड सीमेंशन. तो चीफ ऑफिसर, कैप्टन जो भी देख रहे हैं, सो आपका ये प्लस पॉइंट है कि ड्यूटी ऑफिसर इज अगेन अ वेरी गुड सीमैन, दैट ही इज वार्निंग द पीपल एंड ही इज वरीड अबाउट द शिप सेफ्टी. भाई आगे जितने भी वाटर टाइट डोर्स हैं, स्टोर्स के, कोई काम हो रहा है खुला है, उसको प्लीज बंद कर दीजिए. Isn't it? That means weather is going bad and अब तो heavy spray होगा, and आगे जाना भी restrict कर दीजिए. You never know, sometime कोई wave ship का अगर freeboard कम है, sometime the sea waves also come on the ship, accident होने का डर है. तो ये सारी safety precautions as a duty officer, चाहे आप ब्रिज पे हो, you are totally again in charge. ये नहीं कि ब्रिज का मतलब हम खाली ब्रिज के इंचार्ज. Keep watching on deck also. So ये आपके लिए the people feel they develop a good regard towards you. यार duty officer is cautious, he is careful about us, he is watching us, he is bothered about our safety. इसमें आपने हेजिटेट नहीं करना, चाहे कैप्टन साहब ब्रिज पे हैं, चाहे कोई भी है, आप अपना ड्यूटी ऑफिसर का काम, यार आई एम द ड्यूटी ऑफिसर, आई मस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ये फीलिंग आप पे होनी चाहिए. पोलाइटली, सॉफ्टली, बोसन वेदर लुक्स बैड, स्प्रे इज कमिंग, तो प्लीज मेक श्योर आपके आगे के सारे जो स्टोर्स के डोर्स बंद कर दीजिए, उसको भी अच्छा लगेगा, एंड जरा आगे रिस्ट्रिक्शन कर दीजिए. ओके, सो ये चीज़ें आपको इसलिए दिखाती है. अब आपका आ गया विंड फोर्स 9. नाउ यू सी, you people, most some of you may have faced this force 45 50 knots or 45 47 knots की wind. Now you see the sea looks absolutely disturbed and this white foam is blown through in well marked directions, and sometimes जो वेव है इसके ऊपर से ये फोम जो है रोल करती हुई आपको दिखेगी. That means it is straight way wind force 9. Very high waves with long overhanging crust resulting foam in great patches is blown in dense white streaks along the direction of wind. तो यहाँ पे तो deck पे जाना definitely stop. Nobody should be allowed to go on deck. On the whole, the surface of sea takes a white appearance. Tumbling of sea becomes heavy and shock-like visibility is affected. Visibility भी affect होगी. Ship will depends on the direction of the swell. She may start rolling, pitching, spray. So we stop all the deck work and ask people to come back and secure the ship. Most important, close all the watertight doors. The same thing in wind speed is 52 knots. So this is the, you can imagine, calm sea से how the sea surface looks. So definitely ship will be going up and down. Of course, the bad weather doesn't remain for long, doesn't remain forever. Maybe 1 day, 2 days. So we always pray that we go to the good weather.
बट इसके लिए आपके लिए विंड स्पीड को एस्टिमेट करना, इफ द विंड सी सरफेस इज लुकिंग लाइक दिस 52 नॉट्स विंड। एक्सेप्शनली हाई वेव, अब आ गया फोर्स 11, वायलेंट स्टॉर्म। इसमें एक्सेप्शनली हाई वेव्स, स्मॉल मीडियम साइज शिप्स में बी लॉस्ट behind the waves की वेव हाइट इतनी है। Sea is completely covered with long white patches of foam lying along the direction of wind. ये कैसा दिखेगा? Now you see this. Anybody has faced this? कभी ऐसा सी फेस किया? यस सर, इससे भी खतरनाक सर। अरे वाह वाह। कौन से एरिया में? सर ऑस्ट्रेलिया में लो था, लो के पास ही था, चार्टर ने बोला था उधर ही डिस्चार्ज करना है तो जाना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन पाइप। हाँ सर, पैसिफिक ओशन में सर, नियर बेरिंग सी, इल्यूशन आइलैंड्स। इल्यूशन आइलैंड्स, अरे बाप यार, क्वाइट नॉर्थ इट इज, यस। यस सर। तो वहाँ पे तो ठंड भी बहुत है, इल्यूशन आइलैंड, टेम्परेचर भी कम है, ऊपर से विंड भी ऐसी है, इजंट इट? सो देन वी ऑल, इसीलिए मैंने कहा ना, उसी वक्त हम लोग भगवान को याद करते हैं, बिकॉज वी लिव क्लोज टू नेचर। कोई नहीं हेल्प कर सकता एक्सेप्ट द गॉड, इजंट इट? तो इसीलिए वी ऑल्सो स्लोली स्लोली स्टार्ट बिलीविंग, नहीं यार, अब हम, not only you, everyone on the ship, even including me, I also believe strongly कि God is there, वही हमें बचा सकते। But anyway, Sir, when you were sailing, sir, that time you faced any like some effects of any TRS or something, sir? Any experience? Terrific, terrific, yes. The worst, I think, we were in the North Sea and we had a, आजकल तो आप शिप देखते नहीं हो, the ship was having about 22 derricks and हमारे पास एक स्टल्किन डेरिक थी 200 टन्स की। अभी पढ़ेंगे हम उसको, भी आपको भी दिखाऊंगा स्टल्किन डेरिक क्या होती है। एंड उसकी लैशिंग टूट गई, यहाँ वो सिक्योर होती है। Now you can see this, the huge boom जो है, उसकी लैशिंग टूटे तो उसको आप कैसे उसको वापस सिक्योर करोगे। एंड उसकी वायर जो थी उसमें से स्पार्क्स निकल रही थी, तो जैसे जैसे वो आगे पीछे जाएगी, इट गोज नंबर 3 नंबर 4 होल्ड के बीच में से। एंड वो शिप्स भी ऐसे ही थे, टू मच ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, 25-30 डिग्री तो आराम से रोल करते थे। जनरल कार्गो, सो मच ऑफ सुपरस्ट्रक्चर ऑल्सो, क्रेन्स, नॉट क्रेन्स, इज डेरिक्स, सबको बांधना। एंड सी इससे भी, जैसे आपने कहा, एब्सोल्युटली लाइक दिस। बट अगेन सारे एक्शन लेने पड़ते हैं कि यस, आई वाज चीफ ऑफिसर, सो वी हैव टू गो नाइट टाइम। एंड हुआ क्या, अब जो मेन डेक है वहाँ से एकोमोडेशन की जो एंट्रेंस थी, एंट्रेंस टू एकोमोडेशन वाज द डोर्स, वाटर डोर होते हैं इधर मेन डेक से आपकी एकोमोडेशन में एंटर करने के लिए, और वो दरवाज़ा खुल गया और एकोमोडेशन के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। एंड इसीलिए हम कहते हैं ना, क्रू इज क्रू। अब वो पानी भरा, एलिवे में पानी भरा, उनके कैबिन तक पानी जा रहा है, जब वो पानी उनके कैबिन में गया तो उनको अपने सामान की चिंता पड़ी हुई। फिर किसी को अकल आई कि यार ब्रिज को इन्फॉर्म करो। ब्रिज में फोन आता है कि सर पानी आ रहा है। अरे यार व्हाट डू यू मीन बाय पानी आ रहा है? तो फिर सबको उठाया कि देखा कि यार सिंपल, अब उसने बताइए सिंपल एक्शन, सबसे पहला एक्शन क्या है कि जहां से पानी आ रहा है कि उसको देखा, हमने जाके देखा कहाँ से आ रहा है, कि और दरवाजा खुला, वाटर डोर खुल गया, बिकॉज वो व्हील टाइप था, ऐसे ऐसे घुमाने वाला, बंद करने वाला। वो नेचुरली वेव ने हिट किया तो उसको, व्हील को घुमा दिया, उसके अंदर जो डॉग क्लीट्स है वो खुल गए। किसी के पास इतना, जिसे कहते हैं कॉमन सेंस नहीं है कि पानी आ रहा है तो दरवाजे को जाके बंद कर दो यार, पानी रुक जाएगा, खत्म, गीले ही होंगे ना, और क्या होगा। चलो उनको लेके गए, दरवाजा बंद किया, फिर ठीक है ना, पानी को ठीक है निकाल देते। तो ये बच्चे कॉमन चीजें होती हैं कि वहीं पे आपकी ये जो कहते हैं ना लीडरशिप क्वालिटी, वहीं पे काम आती है कि आपने सेफ्टी भी देखनी है, कैसे उनको मोटिवेट भी करना है, कैसे उनको, जिसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव भी रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है एक दिन नहीं तो 2 दिन, नहीं तो 3 दिन, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वेदर ठीक हो जाएगा, कार्गो भी शिफ्ट हो जाता है, और कार्गो भी शिफ्ट है,
उसको भी देखना है, लिस्ट भी हो जाती है. सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन टेक प्लेस. इसीलिए आपको जब आपने देखा है कार्गो वर्क में, आई स्ट्रेस मोर ऑन द लैशिंग बिकॉज आई हैव सर्टेन थिंग्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड इतने साल के बाद. तो आज मैं कहता हूँ नो, चाहे 1 दिन की सेलिंग है, चाहे 10 दिन की है, चाहे हम सुएज कैनाल में जा रहे, नहीं भैया, लैशिंग बिल्कुल पक्का काम होना चाहिए. लाइक दिस वेदर के लिए कि शिप रोल करे, मैं लैशिंग पर रोप से नहीं, पोलाइटली जिसने भी लेनी लैशिंग है को नहीं बाबू उसको सिक्योर कीजिए. उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते. नाउ यू कैन इमेजिन, आई थिंक जिन्होंने देखा है ऐसी, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट दैट एनीबॉडी शुड फेस सच अ बैड वेदर, बट चलो सी तो सी है. तो जिन्होंने नहीं भी देखा, सो यू लुक एट दिस कि यार यू नेवर नो व्हेन वी फेस दिस टाइप ऑफ वेदर. सो एटलीस्ट मेरा जो शिप है, कार्गो जो है, वो सिक्योर होना चाहिए, उससे एटलीस्ट शिप डैमेज ना हो, कुछ नहीं हो. बाकी शिप्स आर मेड स्ट्रेंथन्ड इनफ, दे कैन गो थ्रू दिस वेदर. चलो ये आ गई आपकी विंड फोर्स 12. अभी देखिए वेव की हाइट कितनी है, छोटे शिप तो वैसे ही इसमें छूट जाएंगे. तो इसलिए आपकी ये जो स्टडी है, हाँ स्लोली स्लोली ऑफ कोर्स अभी आपका बिगिनिंग ऑफ द कैरियर है. यू कीप वॉचिंग व्हाट एक्शन कैप्टन टेक्स, व्हाट ऑल डेटा ही सीज. आज तो हमारे पास बहुत डेटा है, सैटेलाइट के थ्रू हमें पता लग जाता है. हमारे टाइम में तो था ही नहीं, सब कुछ एस्टिमेट करना पड़ता था. विंड डायरेक्शन कैसे है, किधर हो सकता है, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद कोई वेदर रिपोर्ट मिल गई तो मिल गई. आज तो हमें एटलीस्ट इफ आई नो यार स्टॉर्म सेंटर इस तरफ है, इतने माइल है, 100 माइल 200 माइल है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैन टेक डायरेक्शन, पीछे को चले जा सकते, कुछ भी एक्शन ले सकते. पता ही नहीं आपको यार स्टॉर्म सेंटर है कहाँ, मूव किस तरफ कर रहा है, कैन यू टेक एनी डिसीजन? नो. चलो ये तो थी आपकी बेसिकली वेरियस सी सरफेसेस जिससे आप हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं इवन द विंड स्पीड. और कई बार आपको जो विंड ट्रायंगल के क्वेश्चन है उसमें वो दे देगा विंड फोर्स सो एंड विंड स्पीड इज 16 नॉट 20 नॉट्स. एंड अगर somebody ask you here how can you, very simple, some people can ask you exam में, how can you estimate the direction and speed of the true wind at sea? I think now all of you can answer. Okay, sir, as per the Beaufort scale, we look at the sea surface and we compare the sea surface with whatever pictures we have and what force it is, how the sea surface is looking, and there from the Beaufort scale it is given in lot of books, so I can estimate what is the wind speed, isn't it? So easy it is. Wind rose, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है इसी विंड ट्रायंगल के क्वेश्चन में ही कि विंड रोज क्या होता है. विंड एंड करंट आर वेक्टर क्वांटिटीज. व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, isn't it? बेसिक हमने पढ़ा 10th में वेक्टर्स. फॉर दीज द विंड पोजेसेस बोथ. The most important vector quantity in marine climatology is the wind. जो फोर्स भी चलती है और डायरेक्शन से भी, एक डायरेक्शन में भी जाती है. So the wind observations हैं, they are usually summarized in the form of wind roses. Can anybody tell me wind rose कहाँ देखा आपने, किसी बुक में, चार्ट में देखा है? कौन से चार्ट्स में दिखाते हैं? सर नॉरिस टेबल के फर्स्ट पेज पे है. ओके, नॉरिस टेबल के. और कुछ एनी अदर चार्ट्स, एनी अदर पब्लिकेशंस यू हैव ऑन द शिप जो जहाँ पे वेदर चार्ट होते हैं ना सर, वेदर चार्ट जो 12 हाँ क्या कहते हैं उनको? रूटिंग चार्ट्स. रूटीन चार्ट सर. हाँ रूटिंग चार्ट, नॉट रूटीन, रूटिंग चार्ट. तो इससे आप वेदर रूटिंग करते हो, रूटिंग चार्ट्स हैं. सो उनके अंदर होता है रूटिंग चार्ट्स जो है एवरी मंथ के लिए बनाए जाते हैं. जनवरी के लिए, फरवरी, Yes. मार्च, देयर आर 12 12 मंथ्स रहते हैं. या 12 चार्ट्स फॉर ईच ओशियन. नॉर्थ Yes. अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन. सो 5 ओशियंस के लिए आपके पास 12 चार्ट्स, दैट मीन 60 चार्ट्स से आपके पास शिप में होंगे ही होंगे. चाहे आपके पास एक्डिस लगा है फिर भी कुछ भी है, बट ये रूटिंग चार्ट जो है आपके पास होते हैं. उसमें वो आपको विंड रोज दिखाता है. विंड रोज है क्या? बेसिकली इट गिव अ पिक्चोरियल व्यू ऑफ द एवरेज अकरेंस ऑफ विंड्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, showing the wind direction, उसकी strength, frequency for a particular period. एंड ये जो चार्ट्स हैं कि सारे के सारे आफ्टर 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बनाए जाते हैं कि ओवर 15 ईयर्स कि यार इस पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर लैट लॉन्ग पे विंड की क्या डायरेक्शन थी, क्या स्पीड थी. एंड वो ऑब्जर्वेशंस कहाँ से मिलती थी? थ्रू द शिप्स.
आजकल तो हम वेदर रिपोर्ट नहीं भेजते, चलो सैटेलाइट्स हैं, पहले हम ही शिप से वेदर रिपोर्ट भेजते थे एवरी नून टाइम या दिन में एक बार या दो बार जब भी है। तो एज अ थर्ड अफसर की जो वॉच होती थी उसमें वेदर रिपोर्ट भर के रेडियो अफसर को दे देंगे, तो उससे वो सारा कंपाइल करते थे, भाई इस पोजीशन पे विंड की डायरेक्शन ये है, विंड की स्पीड ये है, और सारे डेटा को कंपाइल करके बाद में उन्होंने चार्ट्स पे कि जितनी जितनी ऑब्जर्वेशन बनी 1000 2000 ऑब्जर्वेशन कि भाई इतने लोगों को डायरेक्शन इतनी मिली, ये तो है नहीं कि सभी को एक ही डायरेक्शन मिलेगी, विंड तो कीप ऑन चेंजिंग। सो इट इज वेरी हेल्पफुल दिस रूटिंग चार्ट्स टू प्लान द वॉयज। So these are the diagrams showing for each area percentage frequency of winds from each direction by means of arrows. I'll show you that also, the length of each arrow being proportional to the percentage frequency. ज़्यादा लंबा एरो है that means इस डायरेक्शन से विंड जो है काफ़ी लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम इसी डायरेक्शन से मिली, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरे को भी इसी डायरेक्शन से मिलेगी। And each arrow is divided into segments, each segment representing winds between certain विंड फोर्सेस। अब ये देखिए आपको एरो आपको ऐसे दिखेंगे कि इस एरिया में आपकी जो विंड है, सो दिस कवर्स अबाउट से 5-10 नॉटिकल माइल्स का एरिया, कि इसमें आपको विंड कैसे चार्ट पे स्केल तो होता ही है। अब यहाँ पे किसी को विंड इस डायरेक्शन से मिली, किसी को इस डायरेक्शन से, किसी को इस डायरेक्शन से, किसी को इस, तो मैक्सिमम अगर मेरे को इस एरिया से अगर मैंने अपना कोर्स प्ले किया लाइक दिस, इफ आई एम पासिंग थ्रू और टुमारो डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग टू पास, तो मैं रूटिंग चार्ट पे पहले ही देख सकता हूँ कि यार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरे को इस डायरेक्शन से, बंदों को इस डायरेक्शन से मिली है। सो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम द विंड वाज ब्लोइंग फ्रॉम हियर, बट थोड़े बीच में टाइम में यहाँ से भी थी, थोड़े टाइम में यहाँ। इनकी जो लेंथ है ये एरो की, आई थिंक ये फिगर हम वेरी इजीली बना सकते हैं आंसर में, इजंट इट? व्हाट इज विंड रोज? तो आप ये पिक्चर बना दीजिए, ये भी दिखा दीजिए। अब ये जो सिंगल लाइन है दिस इज विंड फोर्स 1 2 3, फिर ये उसने कहा ये जितना दिखा रहा है दिस इज विंड फोर्स 4, एंड ये जो लंबी लाइन है दिस इज विंड फोर्स 5 एंड 6। सो इनकी जो लेंथ है, अभी देखो इसकी लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, तो मेरे को पता लगता है कि यहाँ पे विंड मोस्टली इस डायरेक्शन से आएगी, इजंट इट? सो हमें साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से विंड मिलेगी, एंड कौन सी फोर्स मिलेगी? ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसकी लंबाई ज़्यादा है। ये लंबाई देखो 1 2 3 छोटी सी है, 4 भी छोटी है, 5 to 6 है। सो मोस्ट प्रोबेबल किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? फोर्स 5 एंड 6 की। ये फोर्स 7 भी हो सकती है। क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर ये जो हाँ हम बोलिए। लोग को रूटिंग चार्ट्स होते हैं, इस पे विंड रोजेस होते हैं, तो सर इसे हर मंथ का एक रूटिंग चार्ट होता है एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, जैसे नॉर्थ अटलांटिक के लिए, तो उस जनवरी के लिए लोगों फरवरी के, तो नेक्स्ट ईयर का जो रूटिंग चार्ट होगा उसमें भी सेम ऑब्जर्वेशन रहते हैं कि हर ईयरली बेसिस पे ऑब्जर्वेशन चेंज होते हैं सर? नो नो, नॉर्मली दे हैव द रूटीन है, वो रूटिंग चार्ट इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, इजंट इट? रूटिंग चार्ट जो है ये नहीं कि एक साल के लिए वैलिड है, रूटिंग चार्ट्स रिमेन अनटिल अनलेस देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस, या उन्होंने दोबारा से कंपाइल किया मे बी 4-5 ईयर्स के बाद, फिर वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस टू मैरिनर्स में आ जाएगा, न्यू पब्लिकेशन, कि भाई ये इस एरिया के रूटिंग चार्ट्स जो है नए वाले पब्लिश हो गए हैं। अब नया चार्ट कब पब्लिश होता है? अभी आपका चार्ट वर्क आ गया, अभी आपने चार्ट वर्क शुरू करोगे, यार ये सर जो नया चार्ट तब जब या तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं वहां पे सर, जैसे नई जेटी बन रही है या फिर क्लाइम उधर काफी सारे चेंजेस होते हैं तब नया चार्ट आता है, या सेकंड केस होता है सर इन केस ऑफ एनी बिग मेट्रोलॉजिकल चेंज ऑफ दैट वेदर एरिया इन केस ऑफ रूटिंग चार्ट्स एंड हाँ जी हाँ जी ठीक है। सो रूटिंग चार्ट का भी वही है, आपका जो नेविगेशनल चार्ट्स हैं, चलो आजकल एग डिस्क है उसकी आपके पास करेक्शंस आती रहती हैं। सो सेम थिंग पेपर चार्ट में भी होता था कि थ्रू द नोटिस टू मैरिनर्स उसके अंदर करेक्शंस आती रहती थी। अब कई बार है कि चार्ट्स में हम करते रहते थे, सेकंड ऑफिसर दैट इज यूज्ड टू बी द बिग जॉब, बाकी नेविगेशन तो हो रही है, चार्ट करेक्शन दुनिया भर के चार्ट हैं, 2000 to 3000 चार्ट्स, अब उनको अपडेट रखना यूज्ड टू बी अ वेरी बिग जॉब, वॉच के बाद काम करना पड़ता था। अब जैसे जैसे करेक्शन आएगी तो एक टाइम आता है कि यार चार्ट में काफ़ी करेक्शन आ गई है, तो हाइड्रोग्राफ की ऑफिस जो है वो भी देखता है कि काफ़ी करेक्शन आ गई है, देन ही फील्स कि इसकी नई एडिशन निकाल दीजिए। तो वो सारी की सारी जो है करेक्शन जो थी वो मशीन से वहाँ पे प्रिंट हो जाती है, एरर भी कम हो जाती है। मैंने प्रिंट चार्ट करेक्शन किया है,
हम इतने एक्यूरेसी से नहीं कर सकते जितनी एक्यूरेसी से उनकी मशीन कर सकती है। सो न्यू पब्लिकेशन सेम थिंग, रूटिंग चार्ट्स का भी उनको अगर लगता है कि कहीं मेजर चेंजेस आ गई हैं तो वो न्यू पब्लिकेशन निकाल देंगे, isn't it? फिर जो आप शिप्स के ऑफिसर हैं, सेकंड ऑफिसर है, आप रिक्वेशन बनाते हो और उसको मंगा लेते हो। सो हमेशा हमें जो भी पब्लिकेशन की नई एडिशन आती है, वी शुड कीप द लेटेस्ट एडिशन ऑन बोर्ड। क्यों? सेफ्टी। ओके, सो इन चार्ट्स को भी आप वेरी इजीली आप पढ़ सकते हो। मोस्टली आपके जो रूटिंग विंड रोजेज ऐसे दिखते हैं, isn't it? अब ये देखिए डायरेक्शन तो हमने देख ली, इसके बीच में ये जो फिगर है 4052.2.2 तीन फिगर रहती। फर्स्ट फिगर इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इस एरिया में 4000 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने कंपाइल की और उनको विंड डायरेक्शन जो है अलग अलग डायरेक्शन से मिली एंड उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ है। सो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि यार विंड इसी डायरेक्शन से हो सकती है या कम है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी। नाउ इफ आई एम कमिंग इन दिस रूट, यहाँ से पास हो रहा हूँ, सो आई कैन वेरी इजीली एस्टिमेट कि भाई स्ट्रॉन्ग विंड मिलेगी 5 to 6 जो है, और ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, 7 to 8 भी हो सकती है। चांसेस आर देयर, कम है बट चांसेस आर देयर। सो ये आपने इतना आपने ये चार्ट बनाना है। बीच में मिडल फिगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल्स की, विंड वेरिएबल विंड मिली कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं थी। एंड थर्ड फिगर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्स। भगवान से बहुत पूजा की हुई थी, तो जब हम पास किए तो सर एब्सोल्युटली काम सी मिला, नहीं कहते ना कर्म, इसने अच्छे कर्म किए तो शांत समुद्र मिलता है, काम सीज मिलते हैं, कोई ना कोई होता है जहाज पे भगवान का प्यारा, उसके करके शिप जो है सेफ्टी और काम सीज भी मिलते हैं। चलो ये तो आपके हो गए विंडरोज। अब हम आपके पास आ जाते हैं, चलो ये तो ठीक है। फॉर ईच डायरेक्शन द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्यूफोर्ड फोर्स 1 2 3 4 5 6, ये आपने सारा स्केल पे देख लिया। बट आई शोन यू ये एरो जो है बेसिकली इस तरह से डिवाइड किए हुए, ये जो डार्क वाली है इसका 8 to 12 7। सो ये अगर आपने बना दिया, स्केल बना दिया, एंड बाकी आप इतना इसके ऊपर लिख सकते हो, 8 में से 8 नंबर। लेंथ ऑफ एरोज मेजर्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी स्केल गिव्स आइडिया ऑफ परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ और फ्रीक्वेंसी of the wind force. Thickness shading of the sections indicate which group of the wind force they represent. तो ये सारा कुछ आपके लिए लिखा है, इसको पढ़िए, थोड़ा आप समझ लिया तो you can write in your language. There may be 2 or 3 figures in the center. First figure indicates number of observation, middle shows frequency of variables and bottom figure frequency of comps. ठीक है, सो ये चीज तो है विंडरोज का क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट, समझ भी लिया, आंसर भी कर सकते हैं, स्केच बना दिया। अगर इतना सारा आपने लिख दिया है, आई विल डेफिनेटली, अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो 8 में से 8 यू डिजर्व, वाई शुड आई कट एवरीथिंग, तो लिख दिए बच्चे ने, फिर क्यों काटने नंबर, नो। प्लस अब आपका आ जाएगा हमारा व्हाट वी कॉल द ट्रू विंड, एपरेंट विंड, इसकी जो कैलकुलेशंस है। सो थोड़ा सा हम देखें ये ट्रू विंड, एपरेंट विंड, ये क्या चीज़ होती है। नाउ आई टेक यू ऑन द बोर्ड जस्ट टू एक्सप्लेन यू यार ये जो क्वेश्चन है, ये ट्रू विंड और एपरेंट विंड निकालना बेसिकली है क्या चीज़। I hope all of you, अच्छा ये करना पड़ेगा बंद, then only you will see. Hope all of you can see the board. चलो अब ये विंड डायरेक्शन बेसिक चीज अगर आपने समझ ली तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। अब ये विंड है क्या, सपोज मेरा शिप इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 090 and it is absolutely calm sea, wind force 0, you are moving with 20 knots, आप शिप के ब्रिज पे खड़े हो, तो यहाँ पे आप विंड स्पीड कितनी फेस करोगे, सी इज एब्सोल्युटली काम, देयर इज नो विंड, 0, विंड स्पीड इज 0, योर शिप इज मूविंग विद 20 नॉट्स ईस्टर्ली डायरेक्शन में, आप ब्रिज पे, वेरी गुड, फर्स्ट केस, हाँ जी
20 knots. 20 knots. Correct. So first case में ship is moving easterly, no wind, ship speed is 20 knots, so you will face the wind of 20 knots. अब सेकंड केस में कहता हूं कि यस, आपको ईस्टर्ली विंड, आगे से ईस्टर्ली विंड भी 20 नॉट्स की मिलती है। विंड फोर्स 5 हो गई, फोर्स 4 या 5, नाउ यू आर गेटिंग अ ईस्टर्ली। प्लीज रिमेंबर, विंड इज ऑलवेज द डायरेक्शन इट इज कमिंग फ्रॉम। नाउ यू आर फेसिंग, आपका जहाज 20 नॉट से जा रहा है एंड यू आर फेसिंग विंड कमिंग फ्रॉम राइट फॉरवर्ड, राइट अहेड, ईस्टर्ली डायरेक्शन से 20 नॉट की, राइट हेड से 20 नॉट्स की विंड आ रही है। अब आपके ब्रिज पे व्हाट विंड यू विल फेस? 40 knots. Good. So wind 20 knots, ship speed भी 20 knots. So what you will experience? 20 plus 20 हो गया 40 knots. अब थर्ड केस है कि आपका शिप इसी डायरेक्शन में जा रहा है। आई एम गेटिंग नाउ वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली 20 knots. शिप इज हेडिंग ईस्ट एंड आपको वेस्टर्ली विंड 20 नॉट की स्पीड से मिल रही है। अब आप क्या एक्सपीरियंस करोगे अपने विंड? 0. इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका फनल स्मोक किस डायरेक्शन में जाएगा? Upward, sir. Direction of wind. इस केस में, थर्ड केस, फनल स्मोक ऊपर जाएगा सर. एब्सोल्युटली स्ट्रेट, इजंट इट? कि सीधा बिल्कुल Yes. आपको वर्टिकल दिखेगा, आपका फनल स्मोक ऊपर जाता हो। अब हमने ये सारी चीजें देख ली कि यार इस तरफ जा रहा है विंड, हमारे ब्रिज पे एनीमोमीटर लगा हुआ है, अब वो भी एक मेरे को रीडिंग देता है। अब वो जो मेरे को रीडिंग दे रहा है वो बेसिकली क्या रीडिंग दे रहा है? तो ये जो आपकी हमने ये कैलकुलेशन की कि यार 20 नॉट से जा रहा है, 20 नॉट्स अप हुआ, पीछे से आ रहा है तो 0 मिला। सपोज आई से द विंड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, अब हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, यार अगर विंड मेरे को ट्रू विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ 20 नॉट से एंड मैं 20 नॉट से जा रहा हूँ, अब मेरे को ब्रिज पे यहाँ खड़े हुए विंड किस डायरेक्शन से आती हुई दिखेगी? Now, इसी चीज को रिजॉल्व करना। Now we have studied wind is a vector quantity. There is one vector moving in this one. Ship is also a vector because इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। So basically हो क्या रहा है? There is one vector coming here, another vector here. So what do I get? I will experience the resultant of this two vectors. इनका रिजल्टेंट ये है। तो आपके शिप पे आप जब खड़े हो तो आपको विंड जो है बेसिकली यहां से आती हुई दिखेगी। अब किया क्या हमने? इट इज सिंपल, द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ट्रायंगल। अब इसमें से एक भी वेक्टर जो है 0 हो जाता है। सपोज मेरा शिप स्टेशनरी हो जाता है, मेरे पास विंड ये आ रही थी, नाउ द शिप इज स्टेशनरी। अब आपको विंड किस डायरेक्शन से मिलेगी? North direction. करेक्ट, फ्रॉम नॉर्थ। आई एम स्टेशनरी हियर, इंजन बंद करके हम फिशिंग करने के लिए खड़े हो गए। नाउ जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उसी से, बट इफ द शिप स्टार्ट्स मूविंग, ये वेक्टर भी ऑन हो गया, ये वेक्टर भी ऑन हो गया, उसका हमें रिजल्टेंट। दिस इज बेसिकली योर विंड ट्रायंगल। अब इसमें तीन चीजें हैं। प्रैक्टिकल पार्ट अगर आप देखिए, अगर मैंने इसको निकालना है, नो पॉइंट थिंकिंग, स्ट्रेट वे। एक तो हमें शिप का, पहली चीज होगी शिप का, शिप्स फोर्स एंड स्पीड हमें दी होगी।
तीन चीजें होती हैं। दूसरी क्या है? ट्रू डायरेक्शन ऑफ विंड, एंड थर्ड थिंग इज द एपरेंट डायरेक्शन, जो मैं फील करूंगा। एपरेंट डायरेक्शन ऑफ विंड, इन तीनों में से आपको, ये तो मेरे को दिया ही होगा, आई नो शिप्स कोर्स एंड स्पीड आई नो, इन दोनों में से मेरे को एक चीज दी हो सकती है, एंड either I have to find out the direction of the true wind if the apparent wind is given, or if I know the apparent wind from the anemometer, then I can find out the direction of the true wind. अब इसको करने के लिए what do we do? Basically a graphical representation to the scale, isn't it? So हम scale में उसको scale के साथ करेंगे, instead of doing any calculation with the scale, it is much better, much easier. अब एग्जांपल ले लीजिए, पहला ये आपका कि कहता है शिप्स कोर्स एंड स्पीड इज, शिप इज प्रोसीडिंग इन डायरेक्शन 045 with 15 knots. एंड आपको ब्रिज के ऊपर यू आर एक्सपीरियंसिंग ship speed is so much, what we call the apparent wind speed, जो आपको एनीमोमीटर पे दिख रही है, apparent wind speed and direction you get 100 true डायरेक्शन से आपको मिल रही है, और एनीमोमीटर आपको दिखा भी रहा है it is 20 knots. Find out the direction and speed of true wind. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, we select a scale. क्यों? Now I am going to make it like a graphical thing. So हमने to the scale sketch बनाना है. तो scale sketch के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं scale. Means अब scale क्या चूज करना है? अब आपका शिप चल रहा है 15 नॉट से, बाकी तो डायरेक्शन है, तो स्केल हम ले लेते हैं 1 नॉट इज इक्वल टू से 1 सेंटीमीटर, या 1 नॉट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जितनी भी आपका पेपर पे जगह है, जो भी आप अपना आंसर शीट यूज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली 1 नॉट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सबसे पहली चीज आपने क्या ड्रॉ करनी है? सो व्हाट यू डू, the first thing you draw is a vertical line. तो निशान थोड़ा ध्यान दे दीजिए. फर्स्ट वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, एंड हम इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज नॉर्थ साउथ, एंड हम इस पॉइंट को ए बोल देते. नाउ शिप्स कोर्स इज 045 15 नॉट्स. इस पॉइंट पे आप अपना प्रोटेक्टर रखिए, डी रखिए जिसे हम बोलते हैं, और उसको मैं यहाँ से सेंटर पे रख के इसी पॉइंट पे 045, तो यू मार्क दिस 045 इस डायरेक्शन पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 045, एंड अब मेरा स्केल है 1 नॉट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, शिप इज प्रोसीडिंग विथ 15 नॉट्स, तो मैं आराम से इसको 15 सेंटीमीटर यहाँ पे काट देता हूँ, isn't it? So मैं यहाँ से लेता हूँ 0, और जहाँ पे 15 सेंटीमीटर आए, इस पॉइंट को मैं T बोल देता हूँ. तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने. AT बेसिकली क्या है? आपका कोर्स, ये वाला एंगल है आपने बनाया 045, एंड इस पे मैं डायरेक्शन भी डाल देता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन, एंड आप लिख भी देते हो 045 बाय 15 नॉट्स. अब उसने मेरे को दिए एपरेंट विंड कमिंग फ्रॉम 100,
अब आपका A एंड T apparent wind दी है, प्लीज रिमेंबर, एंड वी ड्रॉ फ्रॉम A। अब A से मेरे को 100 की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। सो 100 की डायरेक्शन मीन ये आपका नॉर्थ साउथ है, ये 45 था, तो 100 क्या होगा? अगेन यू कीप द प्रोटेक्टर हियर, अपनी डी को रखिए, एंड यहाँ से ये तो हो गया 90, 100 क्या होगा? ये डायरेक्शन मार्क कीजिए, एंड सेम वे नाउ आई ड्रॉ फ्रॉम हियर 100। आपने पॉइंट लगा लिया, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो। Now the apparent wind is coming from 100. It is like this. अब इसकी स्पीड भी दे दी उसने 20 नॉट्स, तो मेरे पास स्केल तो है, मैं यहाँ से अगेन 20 नॉट्स, इसको यहाँ पे रख के 20 नॉट्स काट देता हूँ। ये मेरा पॉइंट बन गया O। अगर आप इस तरह से करोगे यू विल नॉट मेक मिस्टेक, एंड आपका डायग्राम साथ साथ लेवल भी होता जा रहा है। ट्रू कोर्स 80, ये वाली विंड डायरेक्शन 100 ट्रू by 20 knots. Now you join this OT. अब इस OT को हम ज्वाइन करते हैं दोनों पॉइंट्स को, तो ये आपकी बेसिकली बन जाती है OT is the direction of true wind. अब इस OT को आपने मेजर करना है, कैसे करेंगे? देखिए चार्ट होता है, नेविगेशनल चार्ट, पहले रूलर कंपास है, फिर तो आसान है, फिर तो कंपास से हम अपना रूलर को इसको लिया, कंपास पे देखा किस डायरेक्शन पे है। अब आपका प्लेन पेपर है, आपका जो आंसर शीट है, प्लीज रिमेंबर या तो हम ए पे लाइन ड्रॉ करेंगे या हम टी पे। अब अगेन हम यहाँ पे अगेन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ साउथ लाइन। मेरे को मेजर क्या करना है? ये वाला एंगल, this angle only I want to measure. This is the direction of your true wind. सर एक बार ये मेजर करने के सर OA से फिर से बता सकते हैं प्लीज सर? थोड़ा सा छूट गया था सर, बीच में इंटरप्शन हो गया था, वीडियो नहीं दिखा सर। OA के बाद से सर। ओके ओके, आपको ये समझ आ गया? पहले अपना कोर्स एंड स्पीड, वर्टिकल ये लाइन। सर ये समझ में आया, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद अपना कोर्स ड्रॉ करना है, उसके बाद बता दिए सर। ओके, अब आपको है, आपने ये ए टी लगा लिए, 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट ए था, एक पॉइंट टी लगा लिया, इजंट इट? अब आपने 2 पॉइंट लगा लिए। अगर आपको अपरेंट विंड की डायरेक्शन दी है, देन यू विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए, एंड अगर आपको ट्रू विंड की डायरेक्शन दी है, देन आई विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम टी। सो अब मेरे को अपरेंट विंड डायरेक्शन 100 बाय 20 नॉट्स, मैं ए पे जाता हूं और यहां से 100 नॉट की ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, दिस इज, ये मैंने प्लॉट करनी है, एंगल जो प्लॉट करना है। कैसे करूंगा? अगेन अपना डी रखी, प्रोटेक्टर रखा, सेंटर में एच किया, और यहाँ पे 100 जहां पे आता है पॉइंट लगा लिया, और इस पॉइंट को ए से मिला दिया। ये जो मेरा पॉइंट यहाँ पे आया था, मैंने ए और इस पॉइंट को मिलाया, ये मेरी लाइन बन गई अपरेंट डायरेक्शन 100 की। द विंड इज, प्लीज रिमेंबर, कमिंग फ्रॉम हियर, तभी मैंने एरो इस तरफ लगाया। विंड इज, अपरेंट विंड इज कमिंग फ्रॉम हियर, शिप इज प्रोसीडिंग लाइक दिस, एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग अपरेंट विंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन। अब कितनी स्पीड से विंड डायरेक्शन? 20 नॉट्स। मेरे पास स्केल है वही 20 सेंटीमीटर, मैं ए पे रखता हूँ, 20 सेंटीमीटर यहाँ काट देता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट आ गया ओ, इस लाइन पे जो मैंने ड्रॉ की थी। क्लियर बच्चे? जी सर, हाँ इस यहाँ तक क्लियर हो गया सर। ओके, अब ये जो पॉइंट ओ आपने यहाँ पे बनाया है, ये पॉइंट ओ और टी हमने पहले ही मार्क किया हुआ था, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये ओ टी बेसिकली बिकम्स योर डायरेक्शन ऑफ द ट्रू विंड। ओ ए is the direction and speed of apparent wind, and OT
is the direction and speed of true wind. अब प्रॉब्लम आपको आएगी इसकी मेजरमेंट की, यार अब इस डायरेक्शन को मेजर कैसे करें एक प्लेन पेपर पे। सिंपली हाँ जी, सो टी पे आपने अगेन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो रेड वाला है ये एंगल मैंने मेजर करना है। मैं अपना यहाँ पे प्रोटेक्टर रखता हूँ, 0 0 0 लाइन को मैच करते हैं एंड ये देखते हैं तो कितना आ गया 145 146 147 के करीब आ रहा है। तो इतना एक्यूरेसी नहीं है बट फिर भी तो ये डायरेक्शन आ रही है 147 डिग्री ट्रू। ठीक है, तो इसको चेक करना आपने। चलो आज तो नहीं करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो भी प्रैक्टिकली डू दैट कि यार ये जो डायरेक्शन है कितनी आ रही है। अब स्पीड निकालने के लिए आई विल मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन। इसको मैं 16.9 या 17, ये जो लाइन दिख रही है मेरे को इसकी लंबाई कितनी है, मैंने अगेन अपने स्केल ये जो OT इसकी लंबाई आई से 17 सेंटीमीटर मीन्स 17 नॉट्स। आंसर ट्रू विंड डायरेक्शन 147 by 17 knots। स्लोली अंडरस्टैंड कीजिए, फिर हम फर्दर जाएंगे। आगे का नहीं सोचना कि सर ये क्वेश्चन कैसे, यार ये विंड डायरेक्शन ये विंड ट्रायंगल है क्या। फिजिक्स आप सबने पढ़ी है, इमीडिएटली यार देयर आर टू वेक्टर्स, ओह इट्स अ वेक्टर ट्रायंगल। जैसे आपका रेडार प्लॉटिंग में भी वहां पे हम OAT कह देते हैं, OA प्लस यहाँ पे हम अगेन OAT, वहां पे आपका OAW रहता है। वहां पे भी दो वेक्टर्स हैं, टू शिप्स आर मीटिंग, वो एक दूसरे को कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पे भी टू वेक्टर्स जिसे हम नॉर्मल फिजिक्स लैंग्वेज में कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ट्रायंगल। Force this true direction आंसर। एंड आपने ऐसे ही बनाना है डायग्राम, लाइन एरो जरूर दिखाने हैं, इसके ऊपर ये लिख दीजिए एंड फाइनली राइट योर आंसर डाउन बिलो। आंसर जो भी पूछा हुआ है द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ट्रू विंड इज सो एंड सो। एंड ऑफ द स्टोरी। स्केल आपने दिखा दिया, इसको लिखने की आपकी जरूरत नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सर स्केल हम लोग अपने आप से लिख सकते हैं, सिर्फ 1 नॉट को 1 सेंटीमीटर की जगह 0.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। कुछ भी ले सकते हो, 1 को 0.5 भी ले सकते हो, 1 नॉट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बट वो सबके साथ स्केल सेम होना चाहिए। नहीं कि अपने कोर्स के लिए तो ले लिया 1 नॉट 0.5 और इसके लिए 1 सेंटीमीटर, नो, मेरे पूरी की पूरी ट्रायंगल इसके स्केल सेम रहेगा। और सर इसमें सर मार्किंग कैसे होगी सर, अगर मान लीजिए प्रोटेक्टर से 1-2 डिग्री इधर उधर हो गया तो उसमें पूरा मार्क्स कट जाएगा सर? नहीं कटता, सिर्फ थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा, रीजन है हम इतनी एक्यूरेट नहीं हो सकते। 1 डिग्री का फर्क हो सकता है, स्पीड में हो सकता है 17 के पास बजाय आपकी 16.8 आ जाए, 16.9 आ जाए, 17.1 आ जाए, 17.2 आ जाए, डोंट वरी, बट प्रिंसिपली गलत नहीं होना चाहिए। अब ये विंड डायरेक्शन है 147, इसलिए मैंने एरो लगाए हैं। ये एरो से आपको पता लगता है द विंड इज कमिंग फ्रॉम हियर, ये चीज नहीं मिस्टेक करनी। मैनी टाइम इट हैज हैपेंड, जो मैंने पास्ट पेपर्स देखे कि जल्दी जल्दी में आप क्या करते हो कि ये विंड को आप बेसिकली ये डायरेक्शन ले लेते हो, इसकी अपोजिट। तो रिमेंबर विंड इज ऑलवेज द डायरेक्शन OT एंड OA। इसका अपोजिट अगर आप ले लीजिए 180, इसमें अगर आप ऐड करते हो तो ये बन गया आपका 327। सो विंड डायरेक्शन बाय चांस ये नहीं लिखना कि अच्छा जी 80 किया, इसको ज्वाइन किया तो विंड इज कमिंग फ्रॉम हियर, नो, वो गलती नहीं होनी चाहिए। वो गलती भी फिर मार्क्स कट जाएंगे। अगर 147 की बजाय आंसर आपने लिख दिया कि ओके 148 या 149 भी आ रहा है या 1-2 डिग्री ऊपर नीचे भी होता है, वो डजंट मेक अ डिफरेंस। बट 147 का अगर आपने दूसरी डायरेक्शन लिख दी 327, तब वो गलत हो जाएगा। इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो उसका सिंपल मेथड है, मैंने आपको बता दिया, 80 फोर्स
OA एंड OT, TO एंड AO नहीं याद करना, OA एंड OT। जैसे ही आपके पास O आया साथ ही एरो लगा दीजिए, सो यू नो यार ये डायरेक्शन लेनी है। आई थिंक कंपास में एवरीवन नोज ये कौन सी डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन। चलो ठीक है, आज के लिए आई होप व्हाट वी हैव डन ऑल क्लियर। क्या कहते हो? सर इसके बाद कोई सैंपल क्वेश्चन है आपके पास इसके? डोंट वरी, आपने क्लास में भी, आज तो चलो हमारा थोड़ा टाइम उसमें चला गया था, नेक्स्ट व्हेन वी मीट नेक्स्ट वीक में एक सेशन हम रखेंगे, मैं आपको क्लास में ही कराऊंगा। आपने सिंसियरली सिर्फ करने हैं मेरे साथ अपनी नोटबुक पे, ओके? आई डोंट वांट यू टू स्टडी एक्स्ट्रा। यस सर। 1 घंटा यहाँ भी पढ़े फिर 1 घंटा और जाके मेट्रोलॉजी पढ़े, नो। 1 घंटा यहाँ बैठते हैं, उसमें से एटलीस्ट 45 मिनट हमने सीरियस स्टडी कर ली, नथिंग लाइक इट। आस्ते आस्ते आप 2 या 3 क्वेश्चन एक सेशन और लोगे, आपका आंसर, आपकी स्पीड सब बढ़ जाएगी। बट प्लीज आई रिक्वेस्ट अगेन कि सीरियसली आपने साथ वो करना है। कोई बात नहीं, लेट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन होता है, नेवर माइंड। कहीं पे अटकते हैं, बिकॉज जब आप करना शुरू करोगे देन ओनली यू विल फाइंड, अरे ये डायरेक्शन कैसे निकालूं, अब ये समझ नहीं आ रहा। ऐसे सब कुछ दिखता है, अच्छा आपके सामने है वो सब ठीक दिखता है, अच्छा ऐसे कर लूंगा, वो नहीं हमने करना। हम वो यही तो मैं सर वो एग्री करता हूँ सर आपसे, बट एक सैंपल के लिए सर थोड़ा प्रैक्टिस के लिए पता लग जाएगा, तभी कह रहा था। बच्चे सुब्रा साहब की बुक ले लीजिए, सुब्रा साहब की बुक खोलिए, उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन भी हैं, एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन हैं, बट आई सजेस्ट हम स्लो आप जा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है आप खत्म भी कर सकते हो। बट अब यहाँ पे जो मैंने समझाया है, नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मेरे को ट्रू विंड की दी है तो एपरेंट फनल स्पोक की डायरेक्शन दी है, वो सारा कर देंगे, ओके? अगर आपको चाहिए, फिर हम जब एक बार थॉरो हो गए, 1-2 सेशन कर लीजिए, फिर वो बुक भी आप कर लोगे, पास्ट पेपर्स जो हैं उनमें से भी निकालेंगे, फिर आपको यार ये तो सब बहुत आसान है। पहले हम पूरे टॉपिक्स कर लें, पूरी वेरिएशंस कर लें, 2-3 टाइप के जितने क्वेश्चन हैं वो सब कर लें, फिर हम फास्ट पेपर्स पे जाएंगे, ठीक है? सुब्रा साहब की बुक पढ़िए, उसमें उसने डिटेल दिया, कुछ नहीं समझ आता प्लीज ब्रिंग इट अप, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। चलो ओके, ठीक है सर। बाय बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ सेफ वीकेंड, हैप्पी वीकेंड।